یہ نہ فرمائیے دوائی لگائی کہ نہیں، یہ نہ فرمائیے کہ میں نے مرہم پٹی لگائی کہ نہیں، سرکار یہ تو فرمائیے یہ زخم آیا کہاں سے، یہ زخم کے نشانات آئے کہاں سے، یہ زخم کے آثار آئے کہاں سے؟ کہا مولانا حبیب الرحمان یہ زخم آیا کیسے؟ مجاہد ملت نے جو جملہ فرمایا تھا دل کی تختی پہ نوٹ کر لیجئے گا۔ مجاہد ملت نے کہا سرکار حج کا زمانہ چل رہا ہے اور میں حج بیت اللہ کے لیے جب میں کعبہ شریف میں پہنچا، مدینہ شریف میں پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ اتنی بڑی جماعت کی امامت ایک غدار رسول کر رہا تھا۔ میں نے اعلان کیا نماز میں پڑھاؤں گا، ایک جانب ان کی جماعت ہو رہی تھی، ایک جانب میری جماعت ہو رہی تھی۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا مجاہد ملت، ہمت مجاہد ملت۔ اللہ کا ولی بے خوف ہوتا ہے۔ مجاہد ملت کے تعلق سے علماء بیان فرماتے جو ساتھ میں گئے تھے حج کرنے کے لیے، آپ فرماتے تھے اس وقت کا شیڈول ایسا تھا کہ مکہ میں مدینہ میں پہلے حاضری، پھر مکہ میں حاضری بعد میں۔ آپ لوگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں مجاہد ملت جانتے تھے کہ اتنے بڑی جماعت کی امامت غدار رسول کر رہا ہے، لیکن آپ آگے صف میں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی اقامت ہوتی تھی آپ صفوں کو پھاڑ کر کے صفوں کو چیرتے ہوئے آپ باہر آ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، دنیا سے وہ نہیں ڈرتا ہے۔ اور آپ جماعت ختم ہونے کے بعد میں ایسے گھما کرتے تھے، چلا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے، ان کے چاہنے والے کہتے تھے سرکار یہ ظالموں کی حکومت ہے، نجدی حکومت ہے، یہ باغیوں کی حکومت ہے۔ مجاہد ملت نے کہا تھا باغیوں کی حکومت ہوئی تو کیا ہوا؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے، کیا مجھے جان سے مار دیں گے؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ روزہ رسول میں موت آ جائے، اس سے بڑھ کے اور زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے، زندہ اس سے بڑھ کے زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہ آپ جب مجاہد ملت نے فرمایا کہ لوگ پوچھا کریں گے، مجاہد ملت نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کسی نے چغلی کر دی شیخ نزدیک کے سامنے، اڑیسہ کا آنے والا ایک مولانا حبیب الرحمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ قاضی نے بلایا حبیب الرحمان نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے مجاہد ملت نے کہا تھا دنیا والوں سن لو، سن لو، میں کبھی اس کو اپنا امام مان نہیں سکتا جو غدار رسول ہو، اس لیے کہ جو غدار رسول ہوتا ہے ہمارا مسلک پیغام یہ دیتا ہے اس کی امامت نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا تھا، قاضی نے کہا تھا حبیب الرحمان اتنی تعداد دیکھتے ہو، تعداد کتنی ہے؟ مجاہد ملت نے کہا تھا اے دنیا کے نزدیک سن لے، اگر تعداد دیکھ کر کے بات کرنی تھی کربلا میں تعداد دیکھنی ہوتی، اس لیے کہ 72 ایک طرف تھے، 22,000 کی لشکر ایک طرف تھی، اور اللہ کی رحمت 22,000 کی طرف نہیں بلکہ ان 72 کی طرف تھی۔ شیخ نزدی نے کہا مجاہد ملت یہ تمہارا انڈیا نہیں ہے جو تم یہاں منمانی کر لوگے، یہ تمہارا دھام نگر نہیں ہے جو اپنی منمانی کر دو گے۔ مجاہد ملت نے کہا تھا میں مانتا ہوں کہ یہ انڈیا نہیں ہے، میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں یہ اڑیسہ کی سرزمین نہیں ہے، میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں کہ یہ دھام نگر کی گلی نہیں ہے جو میں اپنی منمانی کر سکتا، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں اس رضا کا غلام ہوں، اس رضا کا چاہنے والا ہوں جس کا مزاج یہ ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، عرس حضور مجاہد ملت۔ کیا مطلب ملا؟ آج تو ہم کہتے ہیں ہماری بستی میں کوئی دیوبندی وہاں بھی آتا نہیں، لیکن جب کسی کی شادی میں جاتے ہیں کیا کریں گے؟ شادی میں گئے تھے، سب پتہ لے کے گئے تھے، بات خراب ہوتی۔ مجاہد ملت نے کہا تھا ایماندار رہو، نبی کے غلام رہو، اس لیے کہ جو غدار رسول ہوتا ہے امام تو بڑے دور کی بات، ہم پاؤں کی جوتی بھی سمجھتے نہیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدار رسول کے لیے کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ عاشق رسول ہے تو سینے سے لگانے کے وہ قابل ہے، اگر عاشق رسول نہیں غدار رسول ہے ٹھوکر سے مار دینا۔ مجاہد ملت
मिल्लत को कहा गया था हबीबुर रहमान कोड़े मारे जाएंगे, जेल में बंद कर दिया जाएगा, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहा हज करने से वापस कर दिया गया जाएगा, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहा मुजदलिफा के मैदान पे ठहरने नहीं दिया जाएगा, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहा काबा का तवाफ देना बंद कर दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मकाम इब्राहिम को चूमने की इजाजत न मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि मैं कभी भी गद्दारी रसूल को इमाम नहीं मान सकता। उनके दिल से पूछिए, उनके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जत है लौट के आया हो जो मुसाफिर राहे मंजिल के करीब। मुजाहिदे मिल्लत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। कहते हैं ना मछली के बच्चे को तैराना सिखाया नहीं जाता, और ये नारा बता रहा है कि हाफिज का बच्चा है। ये कौन है? इसे दुनिया हाफिज साजिद कहती है। और मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता, शेर का बेटा शेर होता है। मुजाहिदे मिल्लत लौटा दिया जाएगा, कोई बात नहीं, लौटा दिया गया है। मामला क्या हुआ? दिल्ली की सरजमी पे रैलियां निकाली गई थी। मामला क्या हुआ था? बंबई की सरजमी पे वामेला मनाया गया था। मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं कि मुझे कैद कर दिया गया था गाजीपुर की सरजमी थे। अभी हजरत सैफ सिराज रजा सैफी पढ़ रहे थे, बंद कर दिया गया था, वाकई में बंद कर दिया गया था। किसी ने कहा था ए गाजीपुर के सरजमी के जेलर सुन ले, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवाद है, ये देशद्रोही है। इसने सोचा था शायद ये देशद्रोही है, इसलिए कि एक सलाखे नहीं कई सलाखों के पीछे में मुजाहिदे मिल्लत ने तो बंद कर दिया गया था। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था मुझे इतना कमरा दे दो, ऐसा कमरा दे दो जहां हवा आती हो, जहां रोशनी पहुंचती हो, ताकि मैं पाकी ना पाकी का इम्तियाज कर सकूं, नमाज पढ़ सकूं। जेल ने कहा था हरगिज नहीं, तारीख गवाह है, मुजाहिदे मिल्लत जेल के अंदर भी थे, जेल के बाहर भी थे। जब बेड़ियां डाली गई थी, मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था बेड़ियां पहनने में मुंह क्यों हो मेरा भारी, ये बाप दादा का तरीका सुन्नते सज्जाद है। जब जेल मंत्री ने देखा मुजाहिदे मिल्लत जेल के अंदर भी है, जेल के बाहर भी है, कदमों पे गिर गया। मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था मैं चलता दरिया हूँ, शहर सिमत बहता जाऊंगा, कहां मुझे रोकोगे, बन बांधोगे, कहां रोकोगे, बन बांधोगे, मैं चलता दरिया हूं, हर सिमत बहता जाऊंगा। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने जो मुझे अख्तियारात दिए हैं, गौसे आजम ने जो मुझे ताकत दिया है, गरीब नवाज ने जो मुझे कुव्वतें दी है, इन कुव्वतों का सहारा लूंगा। ये जेल की हकीकत क्या है? दुनिया की कोई चीज हबीबुर रहमान को कैद नहीं कर सकती। बहुत अच्छे लाजवाब। मामला क्या हुआ? मुजाहिदे मिल्लत बता रहे हैं और कह रहे हैं मेरे हामिद मियाँ, मेरे पीर मुर्शिद, मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरी शोहरत हो जाए, मैं इसलिए नहीं कहता मेरा नाम हो जाए, बल्कि मैं कुर्ता दिखाता हूँ, इसलिए कल मैदान महशर में हबीबुर रहमान मुस्तफा की बारगाह में अपना कुर्ता दिखाएगा, गवाही आपको देनी पड़ेगी। इसलिए ये जख्म दुनिया की मोहब्बत में नहीं, इसके रसूल में मुझे ये इसके रसूल में मुझे जख्म मिला है। मामला क्या हुआ है? मेरे मुजाहिदे मिल्लत जब आइंदा साल गए हैं हज के लिए, तारीख गवाह है। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी फरमाते हैं, मौलाना अब्दुल तवाब कादरी फरमाते हैं, मुजाहिदे मिल्लत उसी शान के साथ में आइंदा साल हज करने जाते हैं। तारीख गवाह है मक्का में भी मुजाहिदे मिल्लत ने अलग मुसल्ला बिछा दिया, एक जानिब उनकी नमाज होती थी, एक जानिब मुजाहिदे मिल्लत की नमाज होती थी। मामला क्या हुआ? मुजाहिदे मिल्लत हज से फारिग होने के बाद में जब मदीनतुल मुनव्वरा आते हैं, नबी के रोज़े पे आते हैं, मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी फरमाते हैं हम लोग उस वक्त मुजाहिदे मिल्लत के साथ में नबी के मुआजे शरीफ के पास में खड़े हुए थे। हमने क्या देखा कि मुजाहिदे मिल्लत के चेहरे पे लर्जा भर अंदाम होता है, आपके चेहरे में कपकपी आती है। हमने क्या देखा? रोज़ा रसूल से मुस्तफा बाहर तशरीफ लाए, हबीबुर रहमान को अपने सीने से लगा लिया और कहा बेटा हबीबुर रहमान डर गए थे, वो तुम्हारा इम्तिहान था, ये तुम्हारा इनाम है। आज भी वो कुर्ता
फरमाते हैं आज भी वो कुर्ता कश्मीर में है, वो कपड़ा कश्मीर में है जिसे मुजाहिद मिल्लत पहने हुए थे, और उस कुर्ते को मेरे नबी ने सीने से लगाया था और उससे आज भी खुशबू आती है। कहना पड़ेगा वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हनपुर। मैं अर्ज ये कर रहा था मुजाहिद मिल्लत कितने निडर थे। बस और दो ही बातें हैं, मैं क्या कि अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। मुजाहिद मिल्लत एक शेर फरमाया करते थे, फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या गरज जो है अब सिंध में। सिंध पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है। आप जानते हो 1857 में एक जंग लड़ी गई थी जिसे जंग गदर के नाम से याद किया जाता है। आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, तारीख याद होगी, बच्चों को जरा बंद कर दीजिए, तारीख याद होगी। मुजाहिद मिल्लत ने एक जंग आजादी के वक्त में उस लड़ाई को जंग गदर कहते हैं, और गदर की लड़ाई में मुसलमान और हिंदुस्तानियों को शिकस्त मिली थी, और उस वक्त अंग्रेजों को जीत मिली थी। और जीत मिलने के बाद में मेरे मुजाहिद मिल्लत उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त जो मुसलमानों के साथ में रवैया किया गया था, दिल्ली के हरियाणा से लेकर के चांदनी चौक से लेकर के हरियाणा तक के लिए कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां मुसलमानों को फांसी पे न लटकाया गया हो, जहां मुसलमानों को फांसी के फंदे में न लटकाया गया हो। 2 साल गैज़ो गजब में रहे, कैद चलती रही, तलवारें चलती रही, लाशें बिछती रही, दुनिया वाले उस वक्त सिसक रहे थे, और खुसूसी तौर पर मुसलमानों को और उलमाओं को शिकार बनाया गया था। इसीलिए कि गदर की लड़ाई में तो सबसे पहले ज्यादा किरदार नुमाया पेश किया था वो उलमा की जमात थी। लेकिन देखते ही देखते जब बदलता गया, हालात बदलते गए, वक्त बदलता गया, वक्त बदलते गए, जब दुनिया के अंदर में बेदारी आई है, इनकलाब आया है, कोई गांधी बनकर निकला है, कोई नेहरू बनकर निकला है, कोई क्या बनकर निकला है। जिस दिन दुनिया में इनकलाब आया था 1857 में गदर की लड़ाई लड़ी गई थी, जीत नहीं मिली थी, लेकिन 1947 में ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ है, न जाने कितने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी टूटी है तब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है, न जाने कितनी औरतें बेवा हुई है तब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है, न जाने कितनी बहनों की खुशियां उजड़ी है तब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है, न जाने कितने बच्चे यतीम हुए हैं तब जाके ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। लेकिन आजाद जब हो गया, हिंदुस्तान आजाद हो गया, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेज जाते जाते नफरत का बीज बो दिया। इसको कहते हैं हिंदुस्तान, उसको कहते हैं पाकिस्तान। उस वक्त के जो मुसलमान थे अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे थे, कह रहे थे हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम सेफ नहीं रहेंगे, हमारी सेफ्टी नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। मैं किसी के ताल्लुक से बदगुमानी नहीं बल्कि तारीख सुना रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि आज तारीख सुना रहा हूँ। मुसलमान जान रहे थे हिंदुस्तान में हमारी हिफाजत नहीं है, हिंदुस्तान छोड़ करके हिजरत कर करके पाकिस्तान चले गए थे। अब बड़ी तादाद में मुसलमान बड़े दानिश्वर लोग पाकिस्तान चले गए, इसलिए कि पाकिस्तान को सोना देने वाली चिड़िया समझा जाता था। और ऐसे आलम में जब लोग जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे, अपने माल की परवाह न की, अपनी दौलत की परवाह न की, अपने खानदान की परवाह न की, अपने बाप दादा की कब्रों की परवाह न की, अपने खेतों खलियान की परवाह न की, अपने प्रॉपर्टी की परवाह न की, छोड़ के चले गए। जायदाद छूट रहा है, छूटने दो, पाकिस्तान जाएंगे, यहाँ हालात बेहतर नहीं है। जब जा रहे थे कुछ गैर मुस्लिम पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे और कब्जा कर रहे थे, जो मुसलमान अपने माल को छोड़ के जा रहे थे। ऐसे आलम में वो लोग मुसलमानों की दौलत पे, मुसलमानों के माल पे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे थे। देखते ही देखते शाह अब्दुल हक मोदी से दहलवी के मजार पे भी गैर मुस्लिमों में अपना कब्जा कर लिया था। ये बात यही रहने दीजिए, जब हिंदुस्तान के हालात में अच्छे नहीं थे, जहां देखिए लाश ही लाश है, जहां देखिए सिसकती हुई आवाज है, जहां देखो खौफ ही खौफ है, जहां देखो हरास ही हरास है। ऐसे वक्त में लोग घबरा रहे थे, उलमा बता रहे थे ऐ लोगों हिंदुस्तान छोड़ के न जाओ, यहाँ तुम्हारे बाप दादाओं की कब्र है, हिंदुस्तान छोड़ के न जाओ, ये तुम्हारी पैदाइश की जगह है, हिंदुस्तान छोड़ के न जाओ, ये तुम्हारा वतन है, हिंदुस्तान छोड़ के न जाओ, यहाँ तुम्हारा
हमारा वतन है, यहाँ न जाओ, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे कितने खानकाहें हैं, हमारे कितने मज़ारात हैं, लेकिन कोई जा नहीं रहे थे। ऐसे मौके से मुजाहिद मिल्लत ने कहा था फिक्र की कैसे रहेंगे हिंद में, उनसे क्या गरज जो है। अब सिंध में देहाती गैबी ने मुझको सदा सर पे कफ रहना पड़ेगा हिंद में। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया था, आपने फरमाया था जो जा रहे हैं जाने दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब हातिफ गैबी ने यानी रब्बे कदीर की बारगाह से आवाज आती है, हबीबुर रहमान अगर हिंदुस्तान में सांसें लेना है, हिंदुस्तान में जिंदा रहना है, हिंदुस्तान में तुम्हारी नस्लें फुलती और फलती रहेगी, तो हक की लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी। आखिरी वक्त तक के लिए अपने हक के लिए लड़ते रहना। मुजाहिद मिल्लत ने किसी की परवाह न की थी, न किसी हुकूमत की परवाह की थी, न किसी लीडर की परवाह की थी। और ऐसे आलम में मुजाहिद मिल्लत को जब खबर मिलती है कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की कब्र पे, उनके आस्थाने पे कब्जा कर लिया गया है और वहां के लोगों ने उनके मीनार को ढा दिया है। आपने न ख्याल किया हिंदुस्तान के हालात कैसे है, आपने ख्याल न किया कि सिसकते हुए हालात है, आपने ख्याल न किया डरे हुए सहमे हुए हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जहां देखो जलने के धुएं उठ रहे थे, जहां देखो वकाना ईरान पड़ी थी, मुजाहिद मिल्लत ने सीना ताना और सिकंदर नाम के एक मुस्लिम का आदमी का सहारा लेते हुए अपने पैसे से जेब से खर्चा करके उस तारीख को लिया और जीत करके अपने पैसे से शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी के मजार की तामीर कराई और आपका गुंबद भी बना दिया। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रईस आज़म उड़ीसा उर्से हुजूर मुजाहिद मिल्लत। कैसे है मुजाहिद मिल्लत? मुजाहिद मिल्लत एक तहरीक का नाम है, मुजाहिद मिल्लत सरापा करामत का नाम है। मुजाहिद मिल्लत ने हिंदुस्तान के हालात के कोई खातिर में ना लाया, इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है वो सिवाय अल्लाह के दुनिया में किसी से नहीं डरता है। आप कहेंगे मौलाना नियाज बताओ तो सही, मुसलमान अगर ऐसे हैं, मुसलमानों के सिपा सालार अगर मुजाहिद मिल्लत थे, जंग आज़ादी के वक्त के थे, लेकिन क्यों उनको फ्रीडम फाइटर के नाम से याद नहीं किया गया, कि उनको मुजाहिद आजादी के नाम से याद नहीं किया गया? आप जानते हो मुजाहिद मिल्लत सिर्फ मुजाहिद मिल्लत नहीं बल्कि मुजाहिद आजादी भी थे। आपने एक आलिम होने की हैसियत से जो किरदार निभाना चाहिए था, आपने तहरीक आजादी के लिए आवाज भी उठाया था। 1930 ईस्वी में देखा होगा आपने, यानी कि उस वक्त के 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसको वाटर टैक्स के नाम से दुनिया जानती है। मुजाहिद मिल्लत ने इसके खिलाफ में एहतजाज किया है और उसकी नुमाइंदगी करते हुए बद्र की सरजमी पे आपको जेल में डाला गया था, आपको कैद किया गया था। क्यों? इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत के सीने में उम्मत का दर्द था, इस कौम का दर्द था, कौम की फिक्र थी। मुजाहिद मिल्लत कहते थे मैं उन आलिमों से नहीं हूँ जो पहले कौम को भेजता हो। मुजाहिद मिल्लत कहते थे हबीबुर रहमान उस जात का नाम है, अगर दुश्मनों के जानिब से गोली चलेगी पहले हबीबुर रहमान के सीने में लगे, पहले हबीबुर रहमान के सीने पे लगे। अलगर्ज में कहूंगा मुजाहिद मिल्लत जंग आजादी में शिरकत किया था। मुजाहिद मिल्लत को फ्रीडम फाइटर के नाम से क्यों याद नहीं किया गया? जंग आजादी में शरीक हुए थे, मुजाहिद आजादी का नाम क्यों नहीं लिया गया? इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत ने अपना तारुफ किसी पार्टी से नहीं रखा था, किसी हुकूमत के पार्टी से नहीं रखा था, अपने आप को सबसे अलग व थलग रख के कौम की खिदमत किए थे। ऐ मेरे लोगों, मैं आखिरी पैगाम देखिए आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मुजाहिद मिल्लत किसी आम इंसान का नाम नहीं, मुजाहिद मिल्लत एक नमाजी का नाम है, मुजाहिद मिल्लत एक रोजेदार का नाम है। पैगाम क्या मिलेगा? मुजाहिद मिल्लत हमारे ऐसे कायद थे, ऐसे कायद थे। मुजाहिद मिल्लत ने हमें तहरीक की शक्ल में खासराने हक को दे दिया है। 1972 ईस्वी में जब एक तंजीम पेश किया था, ये खासराने हक को पैदा किया था। ये खासराने हक 1980 ईस्वी में जब
जब मुरादाबाद की सरजमी पे जंगें हुई थी, फसाद हुआ था, तो यही खूल का खसराने हक की तहरीक ने मुसलमानों को बचाया था। ये कौन है खसराने हक? मुजाहिद मिल्लत ने वही लिबास दिया, लेकिन हाथ में बेलचा दे दिया, इसीलिए कि इसको कोड़ा कहते हैं। इसीलिए जहां भी दीनी जलसे होंगे, जहां पे उर्स होंगे, वहां पे ये दीनी दस्ता मुसलमानों की हिफाजत करता रहेगा। तुम कहते हो कोई बजरंगी दल है, कोई कहते हो कोई आरएसएस है, उनकी तहरीक को न देखो, बल्कि हमारे असलाफ ने भी हमें तहरीक दिया है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमने उसको सपोर्ट नहीं किया, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान में कुल खासराने हक की अगर नुमाइंदगी हर नौजवान करता, आज हमारा ये तहरीक, हमारा ये नाम आज मीडिया की जबान पे होता, आज दुश्मन को दीन में वो तारे दिखा देता। इसलिए कि हमें जरूरी है कि इस मसलक से हमें जुड़ना पड़ेगा, इस तहरीक से जुटना पड़ेगा। आखिरी बात कहूंगा, इजाजत दीजिए हजरत, इजाजत दीजिए। मुजाहिद मिल्लत किसी बेनमाजी का नाम नहीं था। मैं एक बात कहूंगा, उलमाए कराम मेरे मुझ पे फतवा मत लगाइएगा, इसलिए कि मैं जो कहने जा रहा हूं, बल्कि बात एक ही है, मैं किसी की नमाज को किसी की नमाज से बराबर नहीं करता हूं, बल्कि मैं समझा रहा हूं, नमाज की बात आ जाए तो इनाम मिलता है रब करीम की बारगाह से। आपने सुना होगा मकाम सहबा पे हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी। अली की नमाज असर, वो भी कोई सोने का वक्त था? असर के वक्त में नबी सोए थे? नहीं, नबी सोए नहीं थे, आंखों को बंद करके अली को देख रहे थे कि अली मेरी मोहब्बत को देखता है, कि रब की इबादत को देखता है। अली ने भी साबित कर दिया, सरकार मैं अली हूँ, अली इसके मुस्तफ़ा पहले देखूंगा, रब की बंदगी में बाद में करूंगा। और यही वजह है अली की नमाज असर कज़ा हो गई तो क्या मामला मिला? कुरान में आता हाफिजुस सलात व सलातिल उस्ता, तुम बीच वाले नमाज की तुम पाबंदी करते रहो, बीच वाली नमाज की तुम पाबंदी करते रहो। इसलिए असर की नमाज कज़ा हो रही थी। जब असर की नमाज कज़ा हो गई ना, अली की आंखों से आंसू बह करके जब रुखसार से गुजरे हैं और अली की दाढ़ी से निकल करके रुखे मुस्तफ़ा पे जब जज्ब हो गया है, जब वो पकड़ के वहां टपका है, मेरे मुस्तफ़ा की आंखें खुल जाती है। कहा अली किस चीज ने तुमको रुलाया है? अली ने कहा सरकार नमाज कज़ा हो गई, असर का वक्त हो गया, खत्म हो गया, सूरज डूबने के बाद इतनी बात है, अली आज तुम असर की नमाज पढ़ोगे, इसलिए तुम अल्लाह उसके रसूल की अताअत में थे, अल्लाह उसके रसूल की अताअत में थे। कुरान कहता है ऐ हबीब आप कह दो अगर तुम रब को राजी करना चाहते हो मेरी इत्तिबा करो, रब तुमसे राजी हो जाएगा। ऐ अली तुम किसी और की खिदमत में नहीं, अल्लाह उसके रसूल की अताअत में थे। मैं ये कहना चाहूंगा अली नमाज कज़ा हो गई? हाँ या रसूलल्लाह कज़ा हो गई। का कज़ा तो हो गई, जिस नबी के जाने मुबारक पे तुमने कदम रखा था वो नबियों का नबी है, वो रसूलों का रसूल है, और मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा किया था तो सूरज पलट के आ गया था, और सूरज जब पलट के आया था नबी ने कहा अली नमाज असर अदा कर लो, अब कज़ा नहीं होगी। अली ने नमाज असर कज़ा कर दी। बात यही तक है। मैं रुक करके मैं कहना चाहूंगा मेरे मुजाहिद मिल्लत की नमाज कज़ा होने वाली थी जो असर का वक्त था। आप ट्रेन की सरजमी पे ट्रेन से सफर कर रहे थे, मैं नमाज की बराबरी नहीं कह रहा हूँ बल्कि वाक़िया की निशानदही कह रहा हूँ। मेरे मुजाहिद मिल्लत की नमाज असर की बात थी, फिक्री रह गई नमाज कैसे पढ़ूंगा, इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत का हर वक्त गुजरता था सुन्नत मुस्तफ़ा पर, मुजाहिद मिल्लत की हर घड़ी गुजरती थी सुन्नत मुस्तफ़ा पर। इसलिए शायर कहता था वक्फ थी जिसकी जिंदगी हक के लिए, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम, जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। मुजाहिद मिल्लत की नमाज असर का मामला आ गया। आप ट्रेन खड़ी थी, आप रेलगाड़ी खड़ी थी, आप उतर गए हो और उतरने के बाद में नमाज पढ़ रहे हो। लोगों ने कहा सरकार ये जंगल है, रेल चली जाएगी, ट्रेन गाड़ी चली जाएगी और ट्रेन नहीं मिलेगी। मेरे मुजाहिद ने कहा था गाड़ी चली जाए तो मिल जाएगी, नमाज असर चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, नमाज असर चली गई तो नहीं